ओके बेटा, जो नेक्स्ट है आफ्टर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इज द प्रोटीन्स, right? And protein is also the organic molecule like carbohydrates and fats. The elements which are present in proteins, these are carbon, hydrogen and oxygen. as they were present in as they were present in carbohydrates and fats, they also had carbon, hydrogen and oxygen. So ये तीन elements हैं, they're also present in proteins. The different and important is that they also have nitrogen along with these elements. इनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन होगा, बट इसके साथ नाइट्रोजन भी होगा. तो आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है that these are the proteins. नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन्स. और नाइट्रोजन के साथ इसके अंदर जो है बेटा क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. But major for your level, carbon, hydrogen, oxygen, as these three are present in all carbohydrates, proteins and fats. Nitrogen is only present in proteins, तो हम नाइट्रोजन से आइडेंटिफाई करेंगे. अच्छा, अब प्रोटीन्स बेटा किसके बने होते हैं? विच व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दे वर मेड अप ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, स्मॉलर मोनोमर जो कार्बोहाइड्रेट्स का था, दैट वाज द सुक्रोज. तो इनका मोनोमर क्या है स्मॉलेस्ट? दैट वाज ग्लूकोज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. और प्रोटीन्स का स्मॉलेस्ट मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? फर्स्ट दे फॉर्म द अमाइनो एसिड्स एंड देन अमाइनो एसिड्स कंबाइन एंड दे फॉर्म द proteins. पहले they will form the peptones or polypeptides and then they will form the proteins which are the longer chain. Now this is the structure of the amino acids. There is a carbon in the center. This is the carbon atom which is in the center. ठीक है, ये कार्बन है. इसके एक साइड पर जो है बेटा, you can see that this is the hydrogen. At one side this is the amino group. That is amino. G पे is the group and at one side there is the कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, एक साइड पर ये होता है, एक साइड पर ये होता है. दिस इज वन अमाइनो एसिड. इसी तरह का एक सेकेंड अमाइनो एसिड जो है, इट विल कंबाइन विद इट एंड दे विल गिव यू अ डाइपेप्टाइड. ठीक है, लेट्स सी इफ देयर इज डाइपेप्टाइड और नॉट इन योर सिलेबस. आगे हम देख लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, दो कंबाइन करते हैं, डाइपेप्टाइड बनाते हैं, जस्ट सिमिलर टू द डाइसेक्राइड by removal of one water molecule. अब आप देखें कि बेटा all these molecules are actually being formed in the same manner. ठीक है, two of their monomers are combining. ठीक है, they are giving us one water molecule along with the dimer, dipeptide, disaccharide, and then more molecules are combining and they are giving us the complex molecules. ठीक है, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इसको हम अमाइनो ग्रुप बोलते हैं. और देयर आर बेटा 20 to 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ये कंबाइन करते हैं विद वन एंड अदर एंड दे फॉर्म द पॉलीसेकेराइड्स. Here you can see that this is showing a protein molecule and these different colors, blue, green, sky blue, purple. All these different colors are actually indicating different amino acids. There are 20-25 type of amino acids. These amino acids can combine with one another through a chemical bond between them and they can form the polypeptides, peptones or they can form the proteins. ठीक है, इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था. प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. Polypeptides have lower number of amino acids as compared to proteins. Peptones have even lower and then dipeptide और in the end जो है हमारे पास क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड बन जाता है. ठीक है, these are the protein molecules which are made up of different amino acids. Then it's the hydrogenation. Hydrogenation is the reverse, right? Condensation is used for forming these molecules and hydrogenation is used for breaking down these molecules. Here you can see that these are the proteins, right? And this is basically the condensation process. It's not the hydrogenation, it's the condensation. Here you can see these are the amino acids which are shown by different colors. These amino acids are combining with one another through the bond and they are forming the peptides. ठीक है, कि हमारे पास चेन बन गई है. देन इन प्रोटीन दीज चेन्स फॉर्म द 3-dimensional स्ट्रक्चर. ठीक है, और फिर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है, दीज आर मीट. दिस इज नॉट मेंट, दिस इज प्रोटीन.
chicken, fish, beans, pulses, all these are the sources of proteins. Red meat, आपका white meat, fish हो गया, ये सारी sources हैं from where you can obtain the proteins. Okay, these are basically beta the functions of the proteins. These are not the functions of the fats. The important function is that they are again the component of the protoplasm. As we have studied carbohydrates, proteins and fats, they are forming the protoplasm. So all these sources, all these carbohydrates, proteins and fats will be included while we will be studying about the synthesis of the protoplasm. Then protein is also present into the cell membrane. Plasma membrane का भी part है. As it's important for the synthesis of the protoplasm, protoplasm is almost the cell or it's the living matter of the cell. So when it is forming the new cells or new protoplasm, it means that it is helping in the growth, repair of worn out cells. ठीक है, आप देखें कि the cell is dividing, it means कि क्या हो रही है, growth हो रही है as more number of cells or protoplasm are being formed. Protoplasm is mostly formed of the proteins. अच्छा, आपने बेटा नोट किया होगा जब किसी की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो हम उनको क्या खिलाते हैं? व्हाट इज गिवन टू देम इन डाइट? ज्यादा क्या खिलाते हैं हम उनको? बॉयज बेटा, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. देखें, जब किसी की सर्जरी ऑपरेशन होता है तो हम उनको ज्यादा क्या खिलाते हैं? क्या हम उनको देते हैं? कीमा देते हैं? कीमा खाते हैं और ज्यादा? अच्छा, शायद आपने नहीं देखा होगा. उनको बेटा हम क्या करते हैं, हम ज्यादा जो है प्रोटीन सोर्स देते हैं. ठीक है, बिकॉज प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन मेक्स द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मीन्स दैट इट्स मेकिंग द न्यू सेल. ठीक है, न्यू सेल का मतलब है कि क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है या रिपेयर ऑफ द वर्न आउट सेल्स हो रहे हैं. अगर कट और सर्जरी होती है तो वहां पर क्या होता है, सेल्स ग्रो. ठीक है, और उससे आ देते हैं डाइट. डाइट में जो है देयर बेटा गिवन मोर प्रोटीन्स. मोर प्रोटीन से क्या होगा, उनकी सेल्स की ग्रोथ होगी, न्यू प्रोटोप्लाज्म विल बी फॉर्म्ड और उनका जो वॉन्ड होता है दैट इज क्विकली हील्ड अप, जख्म उनका जल्दी ठीक हो जाता है. ठीक है, सो ये आपने याद रखना है दैट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वर्न आउट सेल्स. हमारी बॉडी के जो पुराने ओल्ड सेल्स होते हैं विच आर वर्न आउट, दे आर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स which are formed by the proteins. Then it's also the source of the energy, and I've told you they provide you equal amount of energy as compared to equal amount of energy as is provided by the carbohydrates. Agar 1 gram of carbohydrate is giving you 4 joule of energy, the proteins will also give you approximately same amount of energy, 4 or 3.8 joule of energy. ठीक है, और फैट्स जो एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दे गिव यू डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. देन दे आल्सो सिंथेसाइज एंजाइम्स. वी हैव स्टडीड एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. Then they also produce hormones. Hormones are the chemical messengers which are required for the growth and development or maintaining the health in our body. They are also protein in nature and they are also required for the formation of the antibodies. Antibodies क्या हैं? Antibodies fight against different diseases which are produced by our bodies. So they are also protein in nature. वो भी protein की बनी होती हैं. Right? If there is deficiency of the protein, that can lead to a problem which is known as the kwashiorkor. ठीक है, अगर deficiency होती है, this is basically बेटा in children. ठीक है, बड़ों में नहीं होती, चिल्ड्रन में होती है, बिकॉज उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो दे नीड मोर प्रोटीन्स और द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज मोर. तो इनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 50 to 100 grams पर डे. दैट इज द डेली रिक्वायरमेंट, बट इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर. If the children are given less than this requirement, less than this amount of proteins, ठीक है, that leads to a disease which is known as the kwashiorkor. इसमें होते क्या है बेटा, जो बच्चे हैं they will have the swollen abdomen. ठीक है, उनका पेट जो है वो निकला होता है. You can also see the pictures और next time I will show you the picture of the children suffering from kwashiorkor. इनकी स्किन जो है वो क्रैक कर जाती है as the skin is made up of cells and cells are protein in nature and it also becomes scaly, rough और dry सी skin हो जाती है इनकी. ठीक है, it happens in this. अच्छा, it is tested by biuret test.
प्रोटीन्स आर टेस्टेड बाय बायोयूरेट टेस्ट। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। हम इसमें क्या करते हैं, हम बेटा बायोयूरेट रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, हम बायोयूरेट सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना सैंपल लेते हैं, सैंपल जो है सैंपल में वी ऐड बायोयूरेट रिएजेंट, ठीक है। Biuret reagent is also of blue color, just like the Benedict solution, but there is difference in the blue color of biuret and Benedict. I will show you in the lab once our classes will start on site. Okay, this is of blue color and it turns to purple. If it turns to purple, it means that our sample has the protein. If it remains as it is blue, it means that sample do not contain. You take sample like egg white. मिस आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ये बेटा आपने पहले बताना था ना, ये तो अच्छा ये देखें, ठीक है। ये क्वाशियोर को मैंने आपको बताया, ये हमने कर लिया था। अच्छा इसमें बेटा आप देखें कि हम सैंपल लेते हैं, लाइक एग वाइट इज द सैंपल है, ठीक है। एंड एग वाइट हम सैंपल लेते हैं टू टेस्ट ट्यूब एंड वी ऐड बायोयूरेट reagent. Biuret is of blue color. If it gives you the purple color, it means that sample has protein, as egg white is the source of protein. ठीक है। If it remains blue, it means that sample do not contain protein. It will remain blue. So biuret test is used for testing your proteins. Now the question is, if you have to test enzymes, so enzymes will be tested by which test? By starch, by iodine test, by Benedict test, by emulsion test, spot test और biuret test. Enzymes को किस चीज को टेस्ट करना है? एंजाइम्स को हमने टेस्ट करना है। तो एंजाइम जो है वो कौन सा टेस्ट हमें पॉजिटिव देंगे? एंजाइम बने किसके होते हैं? आयोनिक टेस्ट। नो, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो वो प्रोटीन का टेस्ट बायोयूरेट टेस्ट देंगे, ठीक है। बायोयूरेट टेस्ट देंगे। इस तरह आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो दे विल गिव यू द बायोयूरेट टेस्ट है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। Yes. अच्छा, let's test this one. Some of the food samples, you can answer these questions yourself afterwards. हम ये वाला एक कर लेते हैं. This is the revision of all the tests we have done. Food tests were carried out on 3 different food samples है, labeled as A, B, C है. आपको नहीं पता A में कौन कौन सी चीजें present हैं. One sample can have more nutrients. ठीक है, जरूरी नहीं है उसके अंदर खाली कार्बोहाइड्रेट्स हो, खाली प्रोटीन्स हो, खाली फैट्स हो. उसके अंदर तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है. अच्छा, टेस्ट इज फर्स्ट वी हैव डन द आयोडीन टेस्ट. अच्छा, सैंपल ए रिमेन्ड ब्राउन, इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च है. नो, ठीक है, इसमें स्टार्च नहीं है क्योंकि इसने हमें आयोडीन टेस्ट नहीं दिया, तो इसके अंदर स्टार्च नहीं है. अच्छा, आयोडीन रिमेन ब्राउन है. अच्छा, ये आयोडीन टेस्ट किया सारा के साथ. बी में भी हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ब्लैक कलर, सी में हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट है. जो हमने 3 सैंपल लिए, ए और बी में स्टार्च नहीं है, सी में हमारे पास स्टार्च है. अच्छा, नेक्स्ट हमने इसको हीट किया है विद बेनेडिक्ट टेस्ट. ब्रिक रेड कलर आया है, इसका मतलब इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. यस यस. बी में भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बिकॉज इट गिव यू ब्रिक रेड कलर. यस. सोल्यूशन सी रिमेन्ड ब्लू. ठीक है, इसमें हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है. अच्छा, ऐड सम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड 1% कॉपर सोल्यूशन. अच्छा, ये जो है बेटा, ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका बायोयूरेट. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. बायोयूरेट टेस्ट में, ठीक है, इट्स नॉट क्लियर. ये बायोयूरेट है. बायोयूरेट में हमारे पास क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, इट हैज
सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको बायोयूरेट हम नहीं देते, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर देते हैं, आप दोनों को ऐड करें उसके अंदर, तो इट विल फॉर्म द बायोयूरेट रिएजेंट। बायोयूरेट टेस्ट आपका हो जाएगा। अच्छा, बायोयूरेट में दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू। सोल्यूशन ब्लू है बेटा बायोयूरेट में, तो ए में आपके प्रोटीन हैं। ठीक है, इट हैज नो प्रोटीन। इसका वॉयलेट कलर हो गया, पर्पल हो गया। दस बी सैंपल हैज प्रोटीन। यस यस, इट हैज प्रोटीन। इसका भी क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, सो इट ऑल्सो हैज प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे सैंपल सी में जो है स्टार्च भी है और हमारे पास प्रोटीन भी है। ठीक है, अच्छा सैंपल बी में हमारे पास स्टार्च नहीं है, इसमें हमारे पास प्रोटीन है और रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब कि ग्लूकोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, कुछ भी हो, ग्लैक्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है, बट इसमें स्टार्च नहीं है। सैंपल ए में कौन सी चीज प्रेजेंट है? मिस स्टार्च स्टार्च नहीं है। है। नहीं, स्टार्च बेटा बीच में स्टार्च है। नहीं है। इसमें क्या है? प्रोटीन है। नहीं, प्रोटीन कहाँ पर है प्रोटीन इसके अंदर? प्रोटीन भी नहीं है, स्टार्च भी नहीं है। इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स इट है कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। फैट तो फैट्स है। इट हैज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन फॉर रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, उसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स है इसके अंदर। माल्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं ना? नहीं, पॉलीसेकेराइड्स का टेस्ट जो है बेटा वो बेनेडिक्ट के साथ नहीं आता। ठीक है, बेनेडिक्ट इज ओनली फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स, और सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड के अलावा जितने भी आपके शुगर्स हैं ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स, सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड के अलावा।